मेरा दिव्या भाई से बहुत पुराना रिलेशन है। जब खाने को कुछ नहीं था तब से दिव्या भाई के साथ हूँ और इसलिए मैंने आज उनको बोला कि दिव्या भाई, मैं बहुत बड़ा, इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू एंड आल्सो माय ब्रदर साजिद साहब, because you have become chairman Klefman, he has become president SAP. And good morning one and all, and it's a very big moment for me to speak in front of Dr. Tarun Sridhar sir, सोदी साहब जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन कर दिया, और हुडा साहब ने अभी बताया कि डेयरीज 40 लाख करोड़, पोल्ट्री इज़ 4 लाख, तो मैं सिर्फ 40,000 करोड़ की बात करने आया हूँ और उसमें भी हमारे पसीने छूट चुके हैं। अब दिस टॉपिक इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री एंड ग्रोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट लुकिंग एक्वाकल्चर मार्केट बियॉन्ड एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स में हमको क्यों प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ आ रही है, ये सिर्फ 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री क्यों स्ट्रगल कर रही है, और इसके क्या इनसाइड है, क्या आउटसाइड है, मैं आपको सिर्फ 10-20 मिनट में बात करूँगा। तो आप देखिए कि why domestic market, why I am talk about domestic market, there are two scenarios. One scenario is world scenario. When I started shrimp farming in 1994, I remember India was hardly producing 45,000-55,000 ton of monodon. वो शायद 4,000 करोड़ भी नहीं था 40,000 से। धन्यवाद देना चाहूँगा तरुण श्रीधर साहब का कि वो जॉइंट सेक्रेटरी थे और उन्होंने वेनामी सुनामी के ऊपर साइन कर दिया, और आज हम सब लोग यहाँ सूट बूट पहन के आपके सामने खड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेडेड श्रिम्प इज 6.5 मिलियन टन, 65 लाख टन, और जो दूसरे देश है, जो चाइना है या दूसरे देश जो श्रिम्प फार्मिंग नेशंस है, दोज हु प्रोड्यूस दैट श्रिम्प फॉर देयर लोकल कंजम्पशन, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड दैट, आई एम ओनली कैलकुलेटिंग 5.5 to 6.5 million tons is international traded shrimp, and the only two countries, India and Ecuador, is supplying 80% of the world traded shrimp. If you see 6.5 million tons of shrimp and you divide it by 8 billion population, so already 800 gram shrimp is available per person on this earth. But who is eating? Only America and China. और आप सब जानते हो हमारी अमेरिका चाइना से तो कितनी अच्छी दोस्ती है, सबसे बड़ी दोस्ती है हमारी उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया की हालत जरा खराब करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इक्वाडोर इज 1/6 ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड प्रोड्यूसिंग 1.5 मिलियन टन्स ऑफ श्रिम्प, एंड बोथ दिस कंट्री, तरुण सर, आर प्योरली डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोर्ट्स एंड स्पेशली इनटू दिस टू कंट्रीज. So that is the biggest problem, one, on the global production, and that is oversupply mode is already there. And what happened in India? If shrimp farming economics has to be dated, has to be dated pre-COVID and post-COVID. I will tell you, sir, post-COVID, 33% has increased the cost of production. I will tell you only one variable called diesel, which was 67 rupees a liter, has gone up to almost 100 rupees a liter. Feed cost, fish meal cost, all has gone up to 33%. And what? Because of overproduction, oversupply mode, the world price realization has gone down by 18 to 22%. So overall, 50% का burden farmers के ऊपर है. And things like COVID, geopolitical situations, war, has further escalated our troubles. Shrimp farming in India, as you know, it is 150,000 hectares divided by at least 60,000-70,000 farmers. I know it's not a big number that where the political motivation will come to safeguard. जैसा कि एग्रीकल्चर में या डेयरी में कुछ हो जाएगा, सोदी साहब ने बोला कि 40,000 करोड़ लोग इसके ऊपर डिपेंड है, तो सरकार सवेरे उठ के भागेगी। यहाँ ज़्यादा कुछ 50 लाख लोगों के ऊपर है, तो उनके कान में जूं भी नहीं रेंग रही है अभी फिलहाल। So this is the situation world over. Why I say? So what option left? Now Ecuador has become such a big challenge. So can we become efficient as Ecuador? आज अमेरिका 50% ड्यूटी की बात कर रहा है, तो क्या हम 50% एब्जॉर्ब करके उतने एफिशिएंट हो सकते हैं? So either we have to produce the world's cheapest shrimp in India, or the other we have to go out of the market. So there is also a very positive sign in India. What we see, our biggest strength is our population.
1.5 billion population. 77% of them are non-vegetarian, but mostly eating eggs, chicken, mutton, fish, not in shrimp. If you see shrimp, 8,200 kilometer coastline, Tarun sir, not even 20 kilometer you go inside, people have never seen shrimp. Never seen shrimp. I still remember a funny point when I was doing a demonstration at Haryana. I don't want to name, but top officers, ministers came there to see the demonstration. जब हमने shrimps निकाला, तो उन्होंने मुझे पूछी मच्छी कहाँ है? मैं बोला सर यही तो है. अरे ये तो कॉकरोच है. So that is the position. I am not saying that is the real knowledge and awareness of non-veg versus when it comes to shrimp. That is the biggest challenge. लेकिन immense potential है. We have 806 districts है, 6.5 लाख टाउन विलेजेस है और कितना बड़ा मैसिव पॉपुलेशन है. अगर से हमारे 77% नॉन वेजिटेरियंस कभी सैटरडे संडे कोई त्यौहार पे खाली 100 ग्राम भी झींगा खाएंगे तो 10 लाख टन तो यहीं खत्म हो जाएगा. इतना बड़ा पोटेंशियल है. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे विश्वास दिलाए. लेकिन एक चीज़ दिव्य भाई मेरे को समझती नहीं है. पिछले 5 साल से मैं कहीं पर भी जाता हूँ, तरुण सर तो सर खो जाता हूँ बड़े बड़े गवर्नमेंट मीटिंग में. सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन में जाओ, फीड मिलर्स के सामने बैठो, ये हैचरी के बड़े बड़े ये लोग यहाँ बैठे हुए, किसी को भी पूछो श्रिम्प के बारे में, लुक्स डिफिकल्ट. तो मैं सोचता हूं कि एनएफडीपी बोल रही है. तरुण सर जब सेक्रेटरी थे तब आपने बताया, तब शायद 12 मिलियन टन का आपने फ्रेश वाटर फिशेस के ऊपर बताया. बट लेटेस्ट डाटा बता रहा है 160 लाख टन हम मच्छी पकाते हैं आंध्र प्रदेश से लेके सब जगह, और सब खा जाते हैं. जब 2-3 लाख टन झींगा की बात है मुश्किल. आई थिंक इनके खुद के अपनी जो इंटरेस्ट है कि भाई इनके प्रोसेसिंग प्लांट का क्या होगा, इनके दूसरे धंधों का क्या होगा, ये लेकिन ये 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री पे इनको फिक्र ही नहीं है. अब ये भाई साहब बीच में आ गए. सर मुझे अभी भी याद है, ये गुजरात आए थे, मैं गुजरात से हूँ. इन्होंने एक गलती करी, स्वामी विवेकानंद कुछ ऐसा बोल दिया, उसकी इतनी मजाक उड़ाई हमने, उनकी इतने जोक्स बनाए कि भाई साहब आप सही में हमारी मुंडन करने के पीछे पड़ा हुआ है. I don't know, this has really become, yesterday Ravi told me, Manoj, don't talk only about Trump and tariff. He's also Donald. Because of this, he's also brought a lot of disease in shrimp farming because of the delayed in harvesting. So you could see what is actually happening. 33% तो compulsory है ही है. अब penalty की बात चल रही है. If अगर से penalty is included, sir, it will go somewhere about 60% tariff. And right now, everybody is clueless what's going to happen. Even you should really appreciate my effort. मैं आपके सामने आके यहाँ बड़ी खुशी से बात कर रहा हूँ, जबकि मेरे फार्म के ऊपर 35 करोड़ का श्रिम्प ऐसे ही पड़ा है, and there is not a single buyer is ready to send the truck because they are clueless. What will happen? What rate we will give or not? और ऐसा नहीं है कि हम बहुत लोग सोच रहे थे कि अमेरिका सामने स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाएगा तो चाइना सपोर्ट में आ जाएगा. चाइना बोल रहा अच्छा 50 लगा रहा है ना, हमको 25% कम दो. Everybody is trying to take advantage of situation. And I'll tell you the cost breakup. And I know there are very few people sitting in Aqua, but if you see majority of Indian shrimp, आप जो बोलते हो कि मुर्गी आप शायद 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो की, सोदी साहब हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में 60, 70, 80 सबसे इंपॉर्टेंट है ये 40-50. ये 40-50 काउंट पूरी दुनिया में पर पीसेस खाया जाता है. और सोदी साहब मैंने वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और फार्म गेट प्राइसेस रखा है. आपने देखना पहले तीनों में डेंजर है. यानी फार्मर अगर से खुशी खुशी पहुंच भी गया हार्वेस्टेबल साइज पे, तो ये सिचुएशन में श्रिम्प फार्मर ऑफ इंडिया इज नॉट अर्निंग ए सिंगल पेनी, whereas it's a highly risk business. So this is the actually ground reality. And coming back to this, why I say that, Jingalala or domestic market, because I have seen why earlier people and previous attempts have been severely failed in domestic market. कोशिश ये थी कि हम एक्सपोर्ट्स का बचा हुआ माल फार्मर्स अपने मार्केट में डालने की कोशिश करें, पीडीटीओ, फ्रोजन, लेकिन लोग खाना ही नहीं जानते. हमारे देश में दिव्या भाई किसी को आप 1 किलो झींगा दे दो वो खराब कर देगा, उसने कभी खाया ही नहीं है. तो इसीलिए इंडिया में अगर से किसी चीज़ को सबसे पहले बढ़ावा देना चाहिए तो क्यूलिनरी एक्सपीरियंस को. आप में से कई लोग हैं जो जिंगालाला आ चुके हैं, देखे हैं. डॉक्टर गिरीश कोलवनकर साहब भी लास्ट टाइम आए थे, एंड ही अप्रिशिएटेड दैट. सो दिस इज एक्चुअली
वंडरफुल, इट्स अ मार्वल। आप उसके अगर से न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट देखो तो इट हैज ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इट हैज ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन्स, इट हैज वाटर सोल्यूबल विटामिन, इट हैज कोलेस्ट्रॉल का जो मिथ है, दिव्या भाई ने मुझे खास बोला, इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर अपने एमडी फिजिशियंस सामने आते हैं, उसको पूछते श्रिम्प मत खाना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। I don't know it is what's happening, but if you really see, it is high density lipoprotein, one of the best. And why I'm saying Jingalala, why I always say, because it is for the chef also, it is one of the most loved product. आप सोदी साहब बॉइल्ड से लेके बिरयानी तक किसी में भी इसको फ्लेवर स्पॉन्ज है, जिसको मैं बोलता हूँ ना कि इट इज लाइक इट कैन एक्सेप्ट एनी फ्लेवर इनसाइड, easy to cook, easy to clean, easy to maintain in the fridge. आप 50-60 पीसेस का पैकेट IQF रखो, आपको 10 चाहिए तो 10 निकाल के बना दो, आपको 20 चाहिए तो 20 निकाल के बना दो। And cooking time compared to any non-veg meat, it is just 1/4, 5 से 6 मिनट में। मैंने जब सोदी साहब ये जिंगालाला के लिए जब पूरी दुनिया से सब शेफ मंगाए, 5-25 शेफों के साथ काम किया, कई लोग थे जिनको एक्सपीरियंस नहीं था, वो प्रॉन करी की तरह उसको उबाल के एकदम रबर की तरह कर देते। लेकिन एक शेफ आया था जो कि नहीं था ज़्यादा ट्रेंड, लेकिन मालवन एरिया से था, उसने तरुण सर करी बना दिया पहले, और करी को जैसे ही बॉयल आया उसके ऊपर स्टोव बंद करके ढक्कन रख दिया, फिर मैरिनेटेड श्रिम्प छोड़ दिया। 3 मिनट में जो टेस्ट आया वो करी का, आई थिंक इट इज़ लाजवाब। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी ईजिएस्ट फॉर इवन शेफ एंड फॉर इवन योर किचन टू कुक इट। प्रॉन कन्वीनियंस अवेलेबल इन मेनी साइजेस, राइट फ्रॉम 10 ग्राम टू 100 ग्राम। आप उसको पीडी करो, डीवेन करो, हेडलेस करो, हेड ऑन करो, आप किसी भी चीज में उसको पोर्शन वाइज करो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट फूड अवेलेबल। देन यू सी डाइवर्स culinary experiences. When you'll come to Jingalala, the main theme of Jingalala is to have dishes from west, east, west, north, south, all dishes. And that's where I have seen you give an Indian people something westernized concept of shrimp over pizza, burgers, pastas and pizzas. They'll not love it. आप पंजाब चले जाओ, अगर उसको बोलो यार छोले विद झींगा, आई विल बी सुपर हैप्पी। सोदी साहब तो कल ट्राई करेंगे। आप आंध्रा चले जाओ, उनके करीज में, उनके इसमें आप देखना कि ये जो सब डिशेज जो आपको पिक्चर दिख रही है, दे आर रियल पिक्चर्स फ्रॉम माय रेस्टोरेंट। एंड जेंजीज जो यंग बच्चे हैं, उनको इतना पसंद आ रहा है कि ये टम्पुराज है या ये रामेन है, वो टोस्ट है, एवरीथिंग दे आर लविंग इट, इवन जेंजी पीपल। सो स्टडी शोज दैट, यू नो, जैसे कोलवनकर साहब ने हैज रेज्ड एन इशू दैट इंडिया इज protein deficient. Yes, sir. Up to 2 days when I'm talking also, we are 45-50% protein deficient. And this is one of the most wholesome protein. 20 to 22% of protein, which is all with full essential amino acids, with all minerals, all fat and water soluble vitamins. It's a wonder food for sure. And then I'll say why Jingalala? Because I am working on Jingalala on 5 principles: awareness, affordability, availability, attractability, then only acceptability will come. मैं हरदम ये सोचता हूँ कि चिकन आज कम से कम 250 रुपए के किलो के आसपास बिक रही है, मटन 700, 800, 900, 1000 जैसा टाइम आ रहा है। तो ये श्रिम्प जो है, जब किसान को 250 से 300 रुपए किलो प्रोडक्शन पक रहा है, तो 400, 450 किलो के ब्रैकेट में तो आराम से जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है सोदी साहब, ये जो ट्रेंड्स हैं मार्केटिंग के, कि आपने लिया, उसको प्रोसेसिंग किया, आपने वेंडर का 40% मार्जिन रखा, आपने किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 10% दिया, ये ऐसा कर करके ये एक रुपए का ग्राम का, जो 1000 रुपए किलो के आसपास भी नहीं, 500 रुपए का, 50 पैसे के ग्राम का है, इसको सब 4-4 रुपए ग्राम तक लेके जाके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके ऊपर से भी जो सबसे बड़ी तकलीफ है, मुझे पता नहीं, सॉरी वेदर आई शुड से इट और नॉट, बट काइंड ऑफ ग्लेज, 20% ग्लेज, 30% ग्लेज, 40% ग्लेज। भाई साहब, तुम इतना कॉस्टली पानी बेच रहे हो झींगा के ऊपर। आप अगर से एक हाउस होल्ड वाइफ अगर से एक प्रॉन का पैकेट मार्केट से लेके घर जा रही है 500 ग्राम समझ के, सर उसको 30% तो खाली पानी मिल रहा है ऊपर से, एंड शी फील्स चीटेड। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी, यू नो, वेरी ऑनेस्ट इन स्प्रेडिंग health awareness. We have to make it affordable, attractable, then only acceptable will come. And I'll tell you a very great story. Kalwankar साहब बोले कि भाई स्टोरी सुनाता हूँ। सर, दिस इज वंडरफुल स्टोरी।
आज भी शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ के बोल रहा हूँ तो कुछ ट्रंप के टेरिफ के बाद पूरी दुनिया बात कर रही है कि डोमेस्टिक मार्केट होना चाहिए। लेकिन सर 3 महीने पहले तक तो मुझे लोग आधे से ज़्यादा पागल ही समझते थे। अरे क्या पागल की तरह बात कर रहा है, पूरा पूरा एक्सपोर्ट है। सरकार के पास जाओ तो सरकार बोल रही है कि भाई $8 बिलियन का अर्निंग है, ये कहाँ बंद करवाने की कोशिश कर रहा है। फीड मिलर्स की तकलीफ ये है कि भाई क्या होगा, एक्सपोर्टर्स की तकलीफ है क्या होगा। लेकिन सर इंडस्ट्री की तकलीफ सोचो कि वो 150 लाख हेक्टर का क्या होगा, उसके अंदर वो 60,000 फार्मर का क्या होगा, वो उसके ऊपर 10 एक लेबर काम कर रहा है, उसके घर का क्या होगा। तो सर आपने दिव्या भाई ने बोला कि यस आई टुक इट अ बिग चैलेंज वेयर गुजरात हैज ए स्टैम्प ऑफ बीइंग ए वेजिटेरियन and that too in Surat with 92% vegetarian population. Sorry to say I dare to start it here. मैंने सोचा अगर से यहाँ दुकान चल गई तो पूरी दुनिया में चल जानी है। सर मैंने 9 जून को चालू किया और 4 महीने के बाद दिव्या भाई कोविड आ गया, 2,500 करोड़ रुपए में डाल चुका था उसमें। अब मेरे पास डिसीजन था कि इनको रिटेन करूं या इनको बाय बाय करूं। भगवान का आशीर्वाद था, कहीं सुन लिया, मैंने उसको रिटेन किया, चालू किया। सर लोग रेस्टोरेंट में नहीं आते थे, मैं 4-4, 5-5 मैं अपने दोस्तों को लिखा के बिठा के बोलते ना वो शाहरुख खान के पिक्चर में, वाह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या क्या एक्टिंग कर रहा है। तो कोई भी अंदर आना लगा तो ये 4 लोग बोलते थे क्या टेस्टी है, थैंक यू डॉक्टर शर्मा, वेरी गुड फूड। बट टुडे आई एम वेरी वेरी प्राउड सर, इन 7 years आई हैव गिवन ए culinary experience to more than 50,000 people. 25,000 people have repeated come back and 7,000 are coming every week and every alternate. And today I'll tell you, Friday, Saturday, Sunday I receive calls for the table. Just 2 hour, 3 hour waiting just to visit Jingalala. And the biggest achievement I can see in Surat had, before COVID, there were more than 1,600 restaurants serving non-veg. लेकिन सर किसी के भी मेनू में श्रिम्प नहीं था। आज गुजरात के अंदर हर 500 मीटर में एक ऑमलेट का लॉरी या बॉइल्ड एग की चीज़ है। सर वो लोग आज तवा फ्राई झींगा बना रहे हैं। And you can see every non-veg hotel in Surat now at least having 1 or 2 shrimp dishes, which I feel is the biggest thing what I have done for in the form of Mission Jingalala. You could see a small modest restaurant. Now my wife is taking care of that. And you could see, if you come to my restaurant, you will see all the walls are painted with health, social impact, awareness benefits and how we run it. You could see a lot of aerators, nets and all the elements of farms. You could see this wonderful mouth-watering dish. मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूँ, इनवाइट भी कर रहा हूँ कि आप आइए जिंगालाला। You could see these are shrimp celebrities all over the world, right from Avanti chairman to Ecuador's directors to Ridley chairman, skating team. You could see Gabriel, he's running now World Global Shrimp Council for promotion of shrimps. You could see my good friend Ravi, even Dr. Saurav Shekhar is there, he is the most visited skating team head. And सोधी साहब, this is also given. आपने मुझे, शायद आपको भूल गए सोधी साहब, 2-4 साल पहले मैं आपसे मिला था, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया था, अरे मनोज तुम तो भी 400 टन बेच रहे हो, मैं तो खाली 2-3 पैकेट के दूध के लेके गया था, दही के लेके गया, तो हम डांस कर रहे थे कि 2 पैकेट बिके. And that, believe me sir, that your word, your on VC has motivated me along. Now today I am telling you proudly, Saji Sab is also sitting here, sir, COVID के पहले shrimp means only Andhra Pradesh. For our distress harvest of 80 count or 100 count, we used to get only 150 to 200 rupees in Gujarat. But today, because I have forced people to keep shrimps in their fish shops, today I think, Saji, we are getting happily 80-100 count, near about 280 to 300 rupees. Now, I am today earning much more selling small shrimp to domestic market than the exports. What is my vision? So my vision is not only for myself. I have given you a map. Imagine there are 806 top districts. In Surat and Mumbai area only, in domestic market like 5 years, Tarun sir, you will be surprised, only Kolaba and Crawford market is receiving more than 150 tons of small size shrimps and going into the market. Surat, 10 years before, not even few hundred kilo used to go Saturday, Sunday. And Devabai today, I will very proudly say that 5 to 10 ton is going like this in this market. So this is something what I want to motivate my fellow farmer, and through this cliff I am say, if Manoj can do it for his single Surat district within 100 kilometers, specially catering to the demand of local market and selling shrimp, if imagine all over maritime states, if 100-200 farmers like
me get into this mode of doing business, I think we will be a very, very, very self-reliant country. Domestic market package for farmers. Now I'll tell you why I always think about Sodhi साहब, जैसा कि गिरी साहब ने बोला कि बर्ड फ्लू आया, लेकिन ये साल का सबसे खतरनाक था. Now, slowly, sir, in our shrimp farming industry also, whether you call white spot disease or white feces disease is very common. So that has given a failure rate of 25 to 35% farmer. So what is failure rate? Means early harvest of 10 gram, 20 gram. So if that 10 gram, 15 gram shrimp really goes to the local market, where farmer not lose money. Anyway, on his crop, his net profit margin has come down from 12 to 8%, sir. If imagine in the worst case scenario, even the deadly disease occurs, if farmer doesn't lose, in fact, it will support the exports because he will have money to add value to his farm and add new farms. So it will really help. But this is what I think that domestic market is a big package for farmers. And what industry and government should do. I know, I'm very proud that the government has pumped in more than 40,000 crore rupees for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि उनको समझाने वाले या उनको दिमाग देने वाले कहीं ना कहीं कमी पड़ रहे हैं. मैं माफ़ी चाहता हूं तरुण सर, आपके जैसे लोग अभी बनना बंद हो गए शायद. वो शायद आपने वो क्लियरली वो ढांचा ही तोड़ दिया आपके जन्म के बाद. बिकॉज सर आप सोचिए 40,000 करोड़ की योजना बनी और खत्म हो गई, लेकिन उसमें से 400 करोड़ भी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर या अपने लोगों को खिलाने के लिए किसी के मन में कल्पना भी नहीं आई. उस बात का मुझे दुख है कि कम से कम हमारी सरकार प्रोएक्टिव होनी चाहिए रादर देन रिएक्टिव. अब जैसे ही ट्रम्प साहब ने झंडा बता दिया, सब भाग रहे, डिफेंस को खिलाओ, नेशनल मिशन बना दो, इसको खिलाओ, उसको. अरे मेरा भाई, जब ट्रम्प 100 दिन पहले उसने घंटी बजाई थी, लगाऊंगा टैरिफ लगाऊंगा, सीधे रहो सदर, तब हम क्या बोले, अरे नहीं लगाएगा. और दूसरी तरफ हमारे 25 साल से मैं मोदी साहब को देख रहा हूं, वो तो अलग ही साहब है, वो तो सबसे बड़े पुष्पा है पूरे वर्ल्ड में, झुकेगा नहीं साला. तो अब झुकेगा कौन फिर? इंडस्ट्री की हालत ऐसी खराब है सर कि झुकेगा कौन? अभी मैं बोलता हूं सर प्रोएक्टिव का रीजन. मैं IFT जून में था, IFT मुंबई में बात कर रहा था दिव्या भाई. मैं सोचा नहीं था, मेरा टेक्निकल सेशन है, शायद 5वां 6ठा स्पीकर है. तो कैबिनेट मिनिस्टर राणे साहब बहुत यंग है, 43-44 के शायद, वो आए, गड़बड़ में थे. तो ऑर्गेनाइजर ने बोला कि सर आप कुछ 5 मिनट बात करके जाए. अब क्या सरस्वती वहाँ बैठी थी, वो बोले मैं क्या बात करूँ, मुझे मालूम नहीं है, जो कोई इंडस्ट्री का जानता है पहले उसको चांस दे दो. अब वो ऑर्गेनाइजर ने इधर उधर देखा, मनोज शर्मा आप आके कुछ बात करिए. अब मैं खड़ा हो गया स्टेज के ऊपर, 5-10 मिनट में बात किया. सर कैसी चीज़ें बदल जाती. वो भाई साहब वहाँ से उठे, पहले तो मुझे बोले कि तेरा नंबर दे. मैंने सर को नंबर दिया. 15 दिन में कॉन्टैक्ट किया कि इसका क्या हो सकता, उसका क्या नहीं हो सकता, आप मुझे कब आके मेरे मंत्रालय में मिल रहे हो, आप ऑफिस में आओ. मैं गया वहाँ पर, बोले गुजरात में आपने इतना अच्छा काम किया, मैंने आपकी स्टडी करी, इसका 10% भी अपन महाराष्ट्र में कर सकते कि नहीं? मतलब बिल्कुल कर सकते सर. बिफोर आई एम टॉकिंग ईयर, कल उन्होंने मेरे को ऑर्डर भेज दिया उनका एडवाइजर बोल के. तो ऐसे प्रोएक्टिव लोग और लीडर्स की इस दुनिया में भी जरूरत है कि जो समझे कि खाली वोट बट पॉलिटिक्स के लिए स्कीमें नहीं बनाए. जैसा आपने बताया कि 40,000 करोड़ लोग का इन्फ्लुएंस है. आप ये 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में सर 1.5-2 करोड़ लोगों का इन्फ्लुएंस है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. और जितने भी टैरिफ की तो आप लिस्ट देखो, सबसे ज़्यादा 60% श्रिम्प के ऊपर है. बाकी आप टेक्सटाइल विक्सटाइल देखो, जिनका यूनिट $1, $1.5 बेचने का है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है दिव्या भाई उसमें. तो ये सबसे बड़ा यही चीज़ है कि अभी नेक्स्ट स्कीम क्या बनेगी. इवन मेरा ये मानना है तरुण सर कि 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है 8 बिलियन की, अगर से उसको बचाना है उसके लिए खाली 2-3 हज़ार करोड़ का भी स्कीम अगर से. अमूल कहाँ से बनी? अमूल अपने विचारों पे आप शुरुआत किया, जैसा डॉक्टर कुरियन जैसे लोगों ने शुरुआत किया. संडे हो या मंडे हो का नारा किसने दिया? सरकार ने दिया क्या? NECC ने दिया. तो मेरा ये अपील है यहाँ से कि भाई हमारे सबसे देश की विडंबना ये है दिव्या भाई, मैं किसान हूँ इसलिए हक से बोल सकता हूँ, सबसे भगवान भरोसे किसान कोई होते तो अपने देश करेगी सरकार, होगा ये होगा. लेकिन जब तक किसान उठेगा नहीं, इंडिया के अंदर श्रिम्प के लिए कोई भी नेशनल मिशन नहीं बनेगा. अगर से हम उठ के कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम करके बैठेंगे तो फिर पीठ तपाने सब आ जाएंगे. So this is the time where farmer listening to me, any shrimp farmer, we need to stand united to do something great for domestic market in India, and then many things will follow. Key points consider, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा सर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है
कि डोमेस्टिक मार्केट अगर से इंडिया में करना है तो क्यूलिनरी एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। 90% लोगों ने इंडिया में श्रिम्प का नाम सुना है, 50% लोगों ने उसको टेस्ट भी नहीं किया है। तो सिर्फ उनको 1 किलो पैकेट देना, जस्ट हैंड ओवरिंग देम अ 1 kg पैकेट ऑफ फ्रोजन इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस, वी विल अगेन फॉल ऑन द फेस। सो those people, those who have hotels, non-veg restaurants, I appeal to them, start converting 1 or 2 dishes for the sake of the farmers for this country. I am on definitely a mission. I think this is 93, 94 picture for my end meat. मैं खुद को survive करने के लिए रस्तों पे रोड साइड पे प्रॉन बेचता था, but I am very proud today. I am on mission mode. I am doing Jingalala, a domestic market mission for the success and survival and sustainability of our country. पहले खुद के लिए बेचता था, अब देश के लिए बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। And I am very proud. Next day Sunday, परसों के दिन 25 तारीख को I am rolling out मुंबई अहमदाबाद हाईवे at डुंगरी, a new shrimp outlet. Join me. बहुत सारे लोग यहाँ मुंबई के एरिया में काम करते हैं, आप आइए और इसका लुत्फ उठाइए, देखिए कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। So thank you so much. Long live shrimp farming. Jai Hind, Jai Bharat.